ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೇವಾ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜಿತರ ಸ್ಮೃತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಹಿರಿಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು, ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಚಾಲಕರು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪರಾಗ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೇವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೇವಾ ಹಿ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಪರಾಗ್ಜಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬಿದಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವಾ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ 1990ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನರಾದರು. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸೇವಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸೇವೆಯೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜನನ 1936ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. 1957ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 2 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ 2 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಅಸಂಭವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದರು. ನಾನಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ವಿಭಾಗ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂತ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂತ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಅವರು ಸಂಘ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು, ಈ 2 ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಕರಾಟೆ, ಈ 2 ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಜೋಯಿಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಯೋಗ ತಜ್ಞರಿದ್ದರು, ಅವರ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಯೋಗ ತಜ್ಞ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತಾವು ಕೂಡ ಯೋಗದ ಒಂದು ಪಟುವಾಗಿ ಪ್ರಾಂತಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಯೋಗ ಪಟುಗಳನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವು ಅಜಿತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಘ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು,
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. 1962ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏನೊಂದು BMTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಘದ್ದು ತರಣ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿಂತು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ 3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಮೈದಾನ ಅದು ಕೆರೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿಬಿರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1981ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು. 1983ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತದ 2ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 1981ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಬಾಹುಬಲಿಯ 1000ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಘ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಥರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೇವಾ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಸಂಗಮ ಅಥವಾ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಥರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಳಶ ಇಟ್ಟಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1980ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಲಾರರು. ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಅವರಿಂದನೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸೇವಾವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು ಸೇವೆಯನ್ನು ವ್ರತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಸೇವಾವ್ರತಿಗಳು. 1981ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಸೇವಾವ್ರತಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 23 ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಜನ ಪುರುಷರು, 5 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಮಾರು 5,000ರಷ್ಟು ಸೇವಾವೃತ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೂರದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂಥ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೇವಾವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವಶಾಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಜಿತ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರ ರಾತ್ರಿ 1990ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ದೇಹಾಂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಧಿಯ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸೇವಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಸೇವಾವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅವಕಾಶವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮಗಳು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಗ, ಆಪ್ತ ಸಲಹೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸೇವಾ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ, ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ, ಈ ರೀತಿ 10 ಥರದ ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈ ಥರದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಾಗ್ಜಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಇಂದೋರ್ನವರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ MSc ಪದವಿಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರಾಂತದ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿಯೂ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. मंच पर उपस्थित हिंदू सेवा प्रतिष्ठान के आदरणीय सुरेश जी और आज के इस कार्यक्रम के निमित्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रतिवर्ष स्वर्गीय अजीत कुमार जी के स्मृति में और इस प्रकार का एक समागम अपने बेंगलोर शहर के अंदर होता है और उसमें सेवा कार्य में संलग्न भाई बहन, सेवा प्राप्त करने वाले बच्चे, ऐसे सब लोग मिल करके एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और पिछले वर्ष भर के अंदर उन्होंने जो अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, जो संस्कार ग्रहण किए हैं, ऐसा सब कुछ भी जन सामान्य के सामने प्रदर्शित करने का अवसर उन सभी भाइयों बहनों को, बच्चों को मिलता है। और इसके साथ साथ हम पुण्य स्मरण भी करते हैं कि ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, सेवा की आवश्यकता क्यों है। जिन स्वर्गीय अजीत कुमार जी की स्मृति में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, हमने अभी सुना, आदरणीय सुरेश जी ने हमको बताया कितने विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त ऐसी एक प्रतिमूर्ति थी जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गई। और उसमें जो काम उनको संघ की ओर से मिला, उस कार्य को उन्होंने पूर्ण मनोयोग के साथ में किया और पूर्ण शुद्धता के साथ में किया, शास्त्र शुद्धता के साथ में उस कार्य को उन्होंने किया। और इस सेवा कार्य को भी हिंदू सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना करने के साथ में और बेंगलोर और कर्नाटक के दूरस्थ क्षेत्रों तक उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और योजना के माध्यम से पहुंचाया, जिसका सुपरिणाम आज हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक परिवर्तन की लहर इन सारे बस्तियों के अंदर, ऐसे सारे समाज के अंदर हमको उठती हुई दिखती हैं। और जिनके बारे में बोला जाता था कि ये कभी पढ़ नहीं सकते हैं अथवा संस्कारित नहीं हो सकते हैं अथवा समाज में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते हैं, ऐसे सब लोगों के बीच में स्वर्गीय अजीत कुमार जी ने योजनाबद्ध रीति से प्रकल्पों का जो प्रारंभ करवाया है, उसका परिवर्तन का परिणाम हम सब लोग इन सारे क्षेत्रों के अंदर देख रहे हैं। उनकी पुण्य स्मृति ही हमको इस कार्य को और तीव्र गति के साथ में आगे काम करने के लिए प्रेरणा देती है। और सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन फिर समर्पित कर ही दिया। और ये जो सेवा है, ये भारतवर्ष का वैशिष्ट्य है, भारतीय समाज का वैशिष्ट्य है सेवा करना। कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, कोई पीड़ित है, ऐसे लोगों के लिए कुछ जाकर के उनके जीवन के उत्थान के लिए हमने कुछ करना चाहिए।
ऐसा एक मनोभाव भारत के भूमि के अंदर है, जन सामान्य के अंदर है। वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, एक भाव तो उसके अंदर है। वो हाँ, करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं। जब कभी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जब कभी कोई ऐसा अवकाश उनको प्राप्त होता है, तो ऐसा उनका सेवा का मनोभाव ये देखने को भी मिलता है। अभी गत वर्ष में ही यानी पिछले 10 माह के अंदर हमने देखा कि दुनिया ने एक बहुत बड़ी और महामारी का सामना किया। कोरोना के नाम से हम सब लोग उसको जानते हैं। तो लोगों को कल्पना नहीं थी किस प्रकार की ये महामारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए कोई दवाई तो है ही नहीं, परंतु मनुष्यों के जान माल की रक्षा करना है, सभी को बचाना है, कष्ट में नहीं आना चाहिए। एक विचित्र प्रकार की बीमारी पूरी दुनिया ने देखी, और इसलिए उसका यदि कोई इलाज है, यदि उससे हमको बचना है, तो एकमात्र इलाज जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया कि भाई संपर्क में दूरी रखना पड़ेगी, शारीरिक संपर्क, और इसलिए इसी से इस पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। इसको देखते हुए विभिन्न देशों ने अपने शहरों के अंदर वहाँ पर लॉकडाउन भी किया। हमारे भारतवर्ष को भी लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड झेलना पड़ा। 23 मार्च को और देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात की घोषणा की कि हम एक लंबा लॉकडाउन करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में बहुत बड़ी चुनौती भारतवर्ष के सामने थी। बहुत बड़ी चुनौती कि इतने दिन के लिए घर के अंदर कैद हो जाना, घर के बाहर नहीं निकलना, एक अनुशासन। और दुनिया के लोगों को लगता था कि हिंदुस्तान में ये लॉकडाउन सफल नहीं होगा, फेल हो जाएगा, लोग घरों के बाहर आ जाएंगे, पढ़े लिखे कम है, समझदारी कम है, इनकी आवश्यकता इतने प्रकार की है, ये घर के अंदर टिकेंगे नहीं। लेकिन हमने देखा कि भारतवर्ष ने और इस लॉकडाउन का एक उचित तरीके से भारत के समाज ने पालन किया। दुनिया के लोगों को लगता था कि भाई ये लॉकडाउन में यहाँ हिंदुस्तान के लोग गरीब है, घरों में खाने के लिए खाना नहीं है, रोज कमा करके रोज परिवार का पेट पालने वाले लोग हैं, और ऐसे समय में जब लॉकडाउन लंबे समय के लिए लग जाएगा तो इनके पेट का क्या होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की आवाज इतनी बुलंद है कि लोग उनकी बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, घर के अंदर रहने के लिए लोग मनस्थिति से तैयार हो जाएंगे, परंतु पेट का क्या होगा। ऐसे सारे देश जो विकसित देश रहे, उन सारे विकसित देशों में कोरोना ने कितना विभत्स और वहां पर तांडव सा वहां पर खड़ा कर दिया, ये हम सब लोग देखते हैं। उन लोगों को लगता था यहाँ पर और हेल्थ की फैसिलिटीज भी नहीं है, यहाँ पर जन जागरूकता नहीं है, कैसे होगा, डूब जाएगा भारत। परंतु ये भारत का सौभाग्य है, ऐसे कठिन समय में जहाँ सरकारों ने एक बड़ा काम किया, वहीं पर समाज की दृष्टि से जो जन समुदाय को करना चाहिए, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, हेल्थ के लिए, जांचें करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, फैसिलिटीज जितनी देनी, अस्पतालों में सारी व्यवस्था सेटअप करने के लिए, वो पार्ट तो सरकार को करना चाहिए था, जो सरकार ने अच्छे तरीके से किया। परंतु यदि लॉकडाउन में घर के अंदर लोग हैं तो उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी भूख का, उसकी व्यवस्था कौन करेगा। वो तो सरकार कर नहीं सकती, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र भी नहीं है कि वो कर सके ऐसा कुछ भी। तो ऐसे समय में दुनिया ने देखा, भारत के सामान्य समाज ने इस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। ठीक है, संघ का नाम होता है, सेवा भारती का नाम होता है, हिंदू सेवा प्रतिष्ठान का नाम होता है, क्योंकि ये एक संगठित संस्थाएं हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में और डेडिकेटेड कार्यकर्ता इन संस्थाओं के पास में है। अच्छे योजना बना करके दूरस्थ इलाकों तक जा करके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, और इसलिए एक बड़ा नाम संघ का हो गया, सेवा भारती का हो गया, अपने हिंदू सेवा प्रतिष्ठान का हो गया। लेकिन देखा जाए तो सामान्य हिंदू समाज ने, भारतीय समाज ने इसको अपनी एक चुनौती मान करके, जिनके साथ में कोई रक्त का संबंध भी नहीं है, जिनके साथ में कभी कभी कोई परिचय भी नहीं है,
ऐसे लोगों की बस्ती तक जाकर के उन निर्बल, दुर्बल और जिनको कोई रोजगार नहीं है, ऐसे घरों में भी फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम किया। ऐसे परिवारों में भी जाकर के सैनिटाइजेशन और जागरण पैदा करने का काम किया। क्यों किया ये सब? उनका तो कोई संबंध नहीं था। तो इसलिए किया क्योंकि भारत का जो समाज है, उस समाज के लोगों के हृदय के अंदर पीड़ित की सेवा करना, ये मनोभाव बचपन से है। एक भाव है, सेवा का भाव है, एक संस्कार है कि यदि कोई कष्ट में है, उसकी सहायता करने के लिए हमें जाना ही चाहिए। स्वयं को कष्ट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरे के कष्ट को हम देख नहीं सकते। ये एक अंदर छुपा हुआ एक भाव भारतीय जन समुदाय के अंदर है। वे बच्चे भी हो सकते हैं, वे महिलाएं हो सकती हैं, वे युवा हो सकते हैं, वो अमीर भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है। और भारत ने देखा ऐसा एक सुंदर, उत्कृष्ट, अपेक्षित आचरण भारतीय समुदाय ने किया। इस कारण से भारत बचा। इस कारण से हमने देखा कि पेट की भूख के कारण, घर में राशन न होने के कारण, घर में दवाई न आ पाने के कारण किसी भी शहर में हिंदुस्तान के कोई अनरेस्ट की घटना एक भी हमको देखने को नहीं मिली। ना कोई दुकान लूटी गई, ना कोई लोगों के घरों में किसी ने आक्रमण करके कुछ किया। कोई दुकानें लूट करके अपना घर, अपना पेट भरने की किसी ने विचार ही नहीं किया, क्योंकि जीने के लिए उस समय जो मूलभूत आवश्यकता थी, फूड, वो सारा भोजन पहुंचाने का काम ये सेवा संस्थाओं ने और सेवाभावी समाज के भाइयों बहनों ने किया है। ये संस्कार भारत का संस्कार है। ये संस्कार भारत का संस्कार है। सेवा उसको बचपन से देखने को मिलती है। कहां से मिलती है? घर के अंदर संस्कार आता है, परिवार से मिलता है। हम प्रवचन वगैरह सुनने के लिए जाते हैं, साधु संतों के पास में जाते हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न कहें, लेकिन उन सभी शास्त्रों का सार ये है कि दूसरे की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। मानव सेवा, माधव सेवा। इसको कोई केवल पढ़ा लिखा शास्त्रज्ञ पंडित ऐसा ही व्यक्ति जानता, ऐसा नहीं है। गांव में रहने वाली हमारी माँ, शहरों में रहने वाली ना भी पढ़ी हो तो भी ऐसी महिला, सामान्य पुरुष भी जानता है कि मानव सेवा, माधव सेवा। माधव सेवा, मानव सेवा करने से और साक्षात ईश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा ही उसको मन के अंदर भाव आता है। ये सेवा है हमारी शास्त्र में बताई गई सेवा। और ये क्यों भाव आता है? किसी से पहचान नहीं, किसी से परिचय नहीं, फिर भी मुझे उसकी सहायता करने क्यों जाना है? क्योंकि भारतीय साहित्य में, भारतीय शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कारों के अंदर ये बात कही गई है कि जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर है। एक ही ब्रह्म हम सबके अंदर विराजित है। उसी परम पिता परमेश्वर की हम सब संतानें हैं। भिन्न भिन्न रूप में हो सकती हैं, रंग हमारा अलग हो सकता है, नाम हमारा भिन्न हो सकता है, लेकिन हम सब उसी परमात्मा की संतान है। और इसलिए यदि परमात्मा की कोई संतान कष्ट में है तो परमात्मा की उसी संतान, मेरा ये परम कर्तव्य है, उसके कष्ट को मैं जाकर के दूर करूं। भगवत गीता के अंदर यही बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन। तो मैं जो है सभी जगत के जीव जंतुओं के अंदर भी हूं और उसके हृदय में मैं विराजित हूं। यदि तुम उसकी सेवा करोगे तो समझो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। ऐसा भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और ऐसे अनेक शास्त्र के अंदर अनेक अनेक बातें कही गई। उसको जब हम बार बार सुनते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं, स्वाभाविक सेवा का भाव हमारे मन के अंदर जागृत हो जाता है। 18 पुराणों की संरचना कर दी भगवान वेद व्यास जी ने। उसको पढ़ करके यदि उसका पालन करने लग जाए मनुष्य जन, तो ये दुनिया सर्वदृष्टि से सुखी हो जाएगी। लेकिन सारे 18 पुराण तो कोई पढ़ नहीं सकता है, कठिन है। आज के युग के अंदर, भागदौड़ के अंदर सभी के लिए पढ़ना कठिन है। तो लोगों ने पूछा भगवान वेद व्यास जी से कि ये सारे 18 पुराण हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई सार हमको बताइए जिससे जीवन जीने की एक दृष्टि हमको मिल जाएगी।
भगवान वेदव्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे की सेवा करना, किसी का उपकार करना, ये पुण्य का कार्य है, और दूसरे को कष्ट देना ये पाप का कार्य है। इसमें से सभी बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। और ये केवल ज्ञान दिया गया शास्त्र में, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर संतों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर ऐसा करके दिखाया है। संत नामदेव जी अपने घर के बाहर बैठ करके भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। पास में घी का कटोरा रखा था, सूखी रोटियां उनके पास में थी, और घी लगा लगा करके रोटियां रखे जा रहे थे। और उतने में एक भूखा कुत्ता दौड़ते हुए आता है और रोटियां उठा करके भाग जाता है। संत नामदेव जी डंडा लेकर के उनके पीछे नहीं जाते हैं, संत नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के उसके पीछे जाते हैं कुत्ते के, कि तू रुक जा, तेरे को रोटियां मिलेगी, लेकिन रोखी रोटी मत खा, उसके ऊपर मैं घी लगाऊंगा, तब जैसा मैं खाता हूं वैसा ही तुम खाना। दुनिया के किसी शास्त्र में, दुनिया के किसी देश के अंदर इस प्रकार का आचरण देखने को हमको नहीं मिलता है। केवल मनुष्य की सेवा नहीं, जीव जगत की सेवा, उसके अंदर भी, उस कुत्ते के अंदर भी उसने ईश्वर के स्वरूप को देखा है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों उदाहरण हमको भारतवर्ष के अंदर महापुरुषों, संतों के जीवन के अंदर देखने को हमको मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा श्रेष्ठ आचरण केवल संत करते हैं, महापुरुष करते हैं, या पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, या अमीर लोग ही, सक्षम लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अभी अभी ये सारा कोरोना का कालखंड हो गया, इसमें हमने देखा है कि सक्षम लोगों ने तो सेवा की निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे भी उदाहरण इस देश के अंदर हमको देखने को मिले, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, कि जिनको वास्तव में सेवा की जरूरत थी, उन्होंने भी ऐसे समय में ऐसा आचरण किया कि जो श्रेष्ठ आचरण जीवन के अंदर कहलाया जा सकता है। राजस्थान के अंदर और घुमंतू जातियां रहती हैं, नोमेडिक ट्राइब्स जिनको कहते हैं, और वो अपना घूम घूम करके छोटा मोटा काम करते हैं, अपना कमाते हैं पैसा और अपना पेट पालते हैं। सैकड़ों वर्ष से वो इसी पद्धति से जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा जब क्वारंटाइन हो गया, लॉकडाउन लग गया पूरे देश के अंदर, सभी को लगा, उस क्षेत्र में रहने वाले राजस्थान के संघ के कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई ये सारा गरीबों की बस्ती है, घुमंतू लोग यहाँ रहते हैं, और इनके पास में 7 दिन हो गया, अभी खाना नहीं पहुंचा होगा, तो क्या किया जाना चाहिए, इनके पास में फूड पहुंचाना है, भोजन हमको इनके पास में पहुंचाना चाहिए। और उनके पास में राशन किट लेकर के अपने कार्यकर्ता गए, वो घुमंतू जाति के लोगों के बीच में, उनकी बस्ती के अंदर, उनको राशन का किट दिया, उन्होंने प्राप्त भी कर लिया। और बाद में उन्होंने पूछा, आप लोग कौन है, क्या ये सरकार की योजना से ये सारा राशन वितरण किया जा रहा है? अपने संघ के सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कहा, नहीं नहीं, ये सरकार का नहीं, हम सेवा भारती के संघ के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और हमको लगा कि आप हमारे भाई हैं और आपके परिवार की हमको चिंता करना चाहिए, और इसलिए हम ये फूड पैकेट और राशन किट आपके पास में लेकर के आए हैं। वो घुमंतू जाति के गाड़िया लोहार लोग थे। उन्होंने कहा कि आज तो हमें इसकी जरूरत है, आप अच्छे समय पर आ गए, 7 दिन का तो राशन हमारे पास में था, लेकिन अभी समाप्त हो गया था, आप हमको ये दे रहे हैं, हम इसको जरूर लेंगे, लेकिन आप 5-6 दिन बाद फिर से हमारे पास में आइए। तो 5-6 दिन के बाद में फिर से अपने कार्यकर्ता उनकी बस्ती के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि आपने हमको क्यों बुलाया था? तो वो कहते हैं 50,000 रुपया 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर उन्होंने अपनी बस्ती के अंदर इकट्ठा किया कि समाज यदि कष्ट में पड़ा हुआ है तो हम भी कुछ न कुछ समाज के हित में काम करना चाहिए। अब गरीबों की बस्ती, इतने भी गरीब नहीं थे, काम करते थे, परंतु घर में फूड नहीं था, लेकिन पैसा था। किसी न किसी प्रकार से पैसा इकट्ठा करके 50,000 की राशि सेवा भारती के कार्यकर्ताओं को देते हैं। वो नोमेडिक ट्राइब, घुमंतू जाति, गाड़िया लोहार, जिनको हम कहते हैं कि अशिक्षित हैं। और उन्होंने कहा कि हमसे भी गरीब यदि कोई लोग आपको देखने को मिलते हैं, ये 50,000 में से हमारा भी कुछ योगदान उनके जीवन की संरक्षा के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार के उदाहरण अनेक गरीब बस्तियों के अंदर देखने को संघ के कार्यकर्ताओं को मिले।
एक गरीबों की बस्ती में, सेवा बस्ती के अंदर कार्यकर्ता फूड के पैकेट लेकर के गए, राशन किट लेकर के गए गरीब के घर के अंदर। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास में तो अभी भोजन का, राशन का किट आप लास्ट टाइम आए थे तभी से है हमारे पास में, परंतु पिछली बार आप पीछे वाला गली के अंदर नहीं गए थे स्ट्रीट में, क्योंकि आपके पास वो पैकेट कम हो गया था, ख़त्म हो गया था, वहाँ पर पहले दीजिए, उनको पहले आवश्यकता है। हमारे पास में अभी 2 दिन तक और ये राशन किट चल जाएगा, लेकिन उनके पास में पूरा समाप्त हो गया है, आप आज हमको मत दीजिए, उनके पास में जाकर के देना चाहिए। ऐसे उदाहरण भारत के हर शहर में, हर बस्ती में हमको देखने को मिले। इनका यदि एक सूची तैयार किया जाएगा तो हमें गर्व होगा अपने भारतीय समाज के ऊपर, गौरव होगा कि जिनको हम कहते हैं कि वे आर्थिक दृष्टि से या तथाकथित संस्कार की दृष्टि से या एजुकेशन की दृष्टि से कम है, लेकिन मानवता की दृष्टि से ऐसे कठिन समय में उन्होंने अपने स्वयं के परिवार की चिंता न करते हुए दूसरे की चिंता की। ये भारत का मूल चरित्र है। ऐसा चरित्र हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के किसी देश के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी जब उस कोरोना कालखंड के अंदर कार्यकर्ताओं को, बल्कि हिंदू समाज को ही जब संबोधित किया कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमको जीना है, हिम्मत के साथ में जीना है, विश्वास के साथ में जीना है, तब उन्होंने 2 बातें कही। संघ क्या करेगा? संघ का कार्य है एकांत में साधना। एकांत में साधना करते हैं, हम अपने गुणों का विस्तार करते हैं, गुणों का उन्नयन करते हैं, सद्गुण हमारे अंदर आना चाहिए ताकि हम राष्ट्र का कार्य कर सकते हैं। परंतु उन्होंने कहा, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, कि लोकांत में सेवा। जब लोग कष्ट में हैं तब हमें सेवा के क्षेत्र के अंदर कूद जाना चाहिए। और इसलिए हमने देखा वो सारे स्वयंसेवकों ने, सेवा भारती ने, हिंदू सेवा प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा काम किया। लेकिन ये सब काम जो हमने किए, ये लोकांत में सेवा वाला विषय है। जब लोग अति कष्ट में हैं उस समय क्या करना चाहिए? तो जो भारतीय समाज ने अपना आचरण करके दिखाया वही करना चाहिए। लेकिन सेवा ये केवल एक तात्कालिक विषय नहीं है, सेवा एक निरंतर चलने वाला विषय है। कभी लोग मरने लग जाए, कभी लोग भूखे मरने लग जाए, उसी समय हम जाकर के उनकी सेवा करेंगे, ऐसी कल्पना भारतीय शास्त्रों के अंदर नहीं है। उनके कष्ट को समझना पड़ेगा, उनका कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। इतना स्वाभिमानी समाज भी रहता है भारत के अंदर, इन्हीं गरीब वर्ग के अंदर, कि वे अपने प्रॉब्लम्स कहने के लिए किसी के पास में जाते नहीं हैं। उनको लगता है हम जैसे है, भगवान ने हमको जैसा रख दिया ऐसा ही हम अच्छा सा जी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी। ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं। लेकिन जिनको भगवान ने कुछ दिया है, पैसा भी दिया है, ज्ञान भी दिया है, भावनाएं भी दी हैं, समझदारी दी है, ऐसे लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम अच्छा जीते चलें, उन्नयन की ओर आगे बढ़ते चलें। और कुछ लोग हमेशा गरीबी के अंदर ही जीते रह जाएं, सड़ते रह जाएं, अशिक्षा में ही, असंस्कार में ही, स्वास्थ्य के कारण मरते रह जाएं। ऐसा समाज नहीं है भारत का। तो इसलिए एक होती है तात्कालिक सेवा जो हमने कोरोना कालखंड के अंदर देखी, दूसरी है निरंतर सेवा। ये जो निरंतर सेवा का कार्य है, इस निरंतर सेवा के कार्य को स्वर्गीय अजीत कुमार जी ने अच्छे से समझा और उसका योजना बनाया। दूरस्थ इलाकों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और श्रमिकों के बच्चों के लिए क्या हम एजुकेशन, उनकी माता बहनों के लिए हेल्थ, और भी कुछ श्रमिकों के लिए कोई स्वरोजगार के ऐसे कामों के बारे में सोच सकते हैं क्या? अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें, कौन कौन सी व्यवस्थाएं समाज के अंदर लाना है, वो स्वर्गीय अजीत कुमार जी ने उसी कालखंड के अंदर सोचा। और इतना बड़ा आज उपक्रम आज पूरे कर्नाटक के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार के सारे सेवा के कार्य पूरे देश के अंदर संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा, सेवा भारती के माध्यम से, सेवा संस्थाओं के माध्यम से चल रहे हैं। और ऐसी सेवा यानी केवल ऐसा नहीं है कि आज भूखे को भोजन करा दिया, कल फिर उस भूखे व्यक्ति को हम भोजन करा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर सेवा का तात्पर्य यह है कि आज जो भूखा है कल वो सक्षम बनना चाहिए। आज जिसके पास में रोजगार नहीं है उसको सिखा करके कल भारत के उन्नति के
दिशा में उसका अपना योगदान होना चाहिए, ऐसा सबल, ऐसा सक्षम, ऐसा समझदार भी उसको हमको बनाना है। ऐसा एक संस्कारित, सक्षम, सबल समाज हमको भारतवर्ष के अंदर खड़ा करना है। और पूरे देश के अंदर जब हम दृष्टि डालते हैं कैसे कैसे सेवा के कार्य स्वयं सेवकों ने किए हैं, सेवा भारती ने किए हैं, संस्थाओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम ला करके दिखाए हैं। कर्नाटक में, बेंगलोर में किए गए कार्यों के परिणाम तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि निकट से आप उसको देखते हैं। लेकिन पूरे देश में कैसे बड़े बड़े परिवर्तन। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक गोपाल समाज करके एक जाति है। अभी वो लातूर के पास में वो सारा अंसरवाड़ा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर वो जाति रहती है अभी सैकड़ों वर्षों से। और उनको पता नहीं किन्हीं कारणों से कहाँ से भगाया गया होगा, शायद मुगलों से लड़ाई लड़ते थे, ऐसा करके उनको और बहिष्कृत कर दिया गया होगा। लेकिन उनको ये आदत है कि केवल घर घर जाकर के भीख मांगना, एक कटोरे के अंदर लोगों के घर में जाकर के भीख मांगना, उसके अंदर जो मिल गया वह खा करके अपना और अपने परिवार का पेट यदि पाल गया, आज का दिन कंप्लीट हो गया, कल के लिए फिर भीख मांगने के लिए जाएंगे। 50 साल से उनकी यही मानसिकता है कि हम जिंदा क्यों हैं, हम पैदा क्यों हुए, क्योंकि हमें घर घर में जाकर के भीख मांगना है, जो कुछ मिल जाएगा वो खा लेना है और अपना जीवन व्यतीत कर देना है। संघ के एक स्वयंसेवक को लगा ये तो उचित नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र भारत के अंदर यदि ऐसा समाज रहे जो भीख मांग करके जीता है, तो ये सारा पढ़ा लिखा जो संस्कारित समाज अपने आप को कहलाता है, उनके लिए शर्म की बात है, ये भारत के लिए गौरव की बात नहीं है। और इसलिए उन्होंने उस समाज के अंदर, गोपाल समाज के अंदर जाकर के काम करना प्रारंभ कर दिया। और उनको कहा कि आप ऐसा क्यों जीते हैं जी, इस प्रकार से क्यों जीते हैं आप। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा भगवान ने ऐसा ही जीवन हमको दिया है ना, तो हमको ऐसे ही जीना है। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा जीना चाहिए। आपको लगता है क्या कि आपके बच्चे ने भी पढ़ाई करना चाहिए, आपके बच्चों को भी सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या। बोले हाँ, हमको ऐसा लगता तो है सम्मान, लेकिन हमको कौन सम्मान देगा जी, हम गरीब लोग हैं, हम भीख मांग करके जीने वाले लोग हैं, हमको तो दूर से लोग रोटी फेंक करके दे देते हैं, हम उठा करके खा लेते हैं, हमें कौन सम्मान सिखाएगा। उन्होंने कहा मैं आपको बता सकता हूँ, आप कुछ न कुछ काम कीजिए। उन्होंने उनके समाज में रहते हुए देखा कि उनका वैशिष्ट क्या है। उनका वैशिष्ट था वो बहुत अच्छा ढोल बजाते थे, जब भीख मांगने के लिए जाते थे तब ढोलक बजाते थे, ढोल। और उनके समाज के बच्चों में, लड़कियों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा वो, और इस प्रकार से नट विद्या जानते थे। उन्होंने कहा इसी दिशा में इनको आगे बढ़ाना चाहिए हमको। और उन्होंने शहर के कुछ बैंड वालों से बातचीत किया, जो शादी विवाह के अंदर बैंड बजाते हैं, उनसे बातचीत करके और इस समाज के कुछ तरुणों को पहले बैंड बजाने का सिखाया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो बजाते थे। नाचना, संगीत, ये तो उनके जीवन के अंदर था ही सही, लेकिन इसी को एक सिस्टमेटिक रूप उन्होंने दे दिया अंसरवाड़ा क्षेत्र के अंदर। और धीरे धीरे वहां पर बैंड बजा करके वे पैसा कमाने लग गए। 2 वर्ष पहले मैं भी उनकी बस्ती के अंदर गया था और मैंने देखा वहां पर साफ सुथरी बस्ती है, कोई भीख मांगने के लिए जाते नहीं है। शराब जैसी बीमारी आज उनके गांव में से, बस्ती में से दूर हट चुकी है। एक सुंदर बैंड ने मेरे सामने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा बजा करके बताया, भिन्न भिन्न प्रकार के फिल्मी गीत बजा करके उन्होंने बताए। और मैंने कहा बाकी लोग कहां पर गए। उन्होंने कहा हमारे इसी गांव में से, इसी बस्ती में से, और लगभग 10-12 बैंड पार्टियां हमने तैयार कर ली हैं। और आज शादी का दिन होने के कारण से वे आसपास के गांव में गए हैं, पूरा काम करके आज देर रात को या कल सुबह तक वो वापस आएंगे और लाखों रुपया कमा करके लाएंगे। अब ये जो एक विश्वास भरा जीवन उनके अंदर निर्माण कर दिया है, ये हमारी सेवा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेवा का, कि व्यक्ति हमेशा ऐसा कटोरा लेकर के रहने वाला नहीं, तो धीरे धीरे इसमें से वो अपने पैर के ऊपर खड़े होने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आज उस अंसरवाड़ा क्षेत्र के अंदर जाकर के लगता है कि हम कोई भीख मांगने वाले समाज के अंदर नहीं है। ये समाज भी वो है जो विश्वास के साथ में खड़ा है, गर्व के साथ में खड़ा है और अपने पैर के ऊपर खड़ा है
भारत को बिगाड़ने वाला नहीं है, भारत को बनाने वाला है, ऐसे अनेक उदाहरण महाराष्ट्र के अंदर भी अनेक प्रकार के उदाहरण हमको देखने के लिए मिलते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर के क्षेत्र के अंदर भी इस प्रकार के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। और उन सब लोगों को लेकर के, जोड़ करके एक समाज परिवर्तन का बड़ा कार्य आज देश के अंदर अपने सारे सेवा कार्यों के माध्यम से चल रहा है। लेकिन अभी भी इसकी मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है। इसको और भी द्विगुणित 3 गुना और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे सब बंधुओं के बीच में राष्ट्र विरोधी शक्तियां भी अनेक प्रकार से काम कर रही हैं। उनको ये लगता है कि यदि ये अशिक्षित रहेंगे, यदि ये निर्धन रहेंगे, यदि ये आवश्यकताओं के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके हम इनसे देश विरोधी, समाज विरोधी कार्य भी करा सकते हैं। ऐसे भी दुर्भाग्य से एनजीओ अपने देश के अंदर है। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है, संघ, स्वयं सेवक, सेवा भारती, हिंदू सेवा प्रतिष्ठान जैसे आज सैकड़ों सेवा संस्थाएं अपने देश के अंदर मजबूती के साथ में खड़ी हैं। हम परिवर्तन ला करके दिखाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद बहुत अधिक था एक जमाने के अंदर। ऐसे आतंकवादी जो लोग हुआ करते थे, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के में नक्सलाइट्स हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर नक्सलाइट्स हो। अभी ये जब आतंकवादियों के साथ में भारतीय फौज का सामना होता है तो आतंकवादी मारे जाते हैं। उनके मारे जाने के पश्चात उनके परिवार का क्या होगा? भारतीय सैनिक मारा जाता है तो भारत की सरकार उनके परिवार के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन यदि आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनके परिवार तो नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अभी तक ऐसे नक्सलियों को, आतंकवादियों को सहायता देते थे, वो आतंकवादी मरने के बाद उस परिवार की ओर झांक करके भी नहीं देखते हैं। उन बच्चों का क्या दोष है? एक कार्यकर्ता को लगा कि नहीं, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हम करेंगे। ऐसे सब बच्चों को, लड़का और लड़की को ढूंढ करके एक हॉस्टल बनाया गया जम्मू क्षेत्र के अंदर, और उस हॉस्टल के अंदर इन बच्चों को रखा गया। लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। कुछ साल पहले अपने एक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी एक हॉस्टल के अंदर गए बच्चों के, और जाकर के उन्होंने सहज परिचय पूछते समय बच्चों से पूछा, बच्चों आप क्या बनना चाहते हो? एक छोटे बच्चे ने कहा कि सर मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनना चाहता हूं। दूसरे ने कहा कि मैं बड़ा होकर के इंजीनियर बनना चाहता हूं। तीसरे ने कहा कि मैं बड़ा होकर के और टीचर बनना चाहता हूं। लेकिन चौथा एक 6ठी क्लास के अंदर ही था, क्लास 6th में था, उसने बड़े खड़े होकर के कहा कि सर मैं बड़ा होकर के आतंकवादी बनना चाहता हूं। सब लोगों को सुनकर के आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कोई बोलता है? ऐसा कोई जीवन का लक्ष्य हो सकता है? सब घबरा गए। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी थे संघ के, उन्होंने कहा कुछ चिंता की बात, क्यों बनना चाहते हो तुम आतंकवादी? 6ठी क्लास के बच्चे से पूछ रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे पिताजी को और इंडियन फोर्स ने मारा है, भारतीय सेना ने मारा है, और इसलिए मैं बड़ा होकर के उसका बदला लूंगा, भारतीय फौज के ऊपर आक्रमण करूंगा, इसलिए मुझे आतंकवादी बनना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब बड़ा होगे तभी ये काम करोगे, अभी तुम यहाँ पर रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से व्यायाम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें जो बनना है बनना चाहिए। उस हॉस्टल के अंदर वो रहता है, कोई उसके साथ में द्वेष नहीं करता है। 3 साल के बाद एक दूसरे अधिकारी उसी हॉस्टल के अंदर जाते हैं, उन्हीं बच्चों की बैठक लेते हैं जो क्लास 6th में थे, आज सब 9th में आ गए हैं, और बच्चों से पूछते हैं बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? पहला बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरा बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तीसरा बोलता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, और चौथा बच्चा जिसने लास्ट बार कहा था कि मैं आतंकवादी बनना चाहता हूं, वो खड़ा होकर के कहता है मैं बड़ा होकर के भारतीय सेना के अंदर जाना चाहता हूं, मैं सैनिक बनना चाहता हूं। ये चेंज आ गया उसके जीवन के अंदर। 3 साल पहले वो आतंकवादी बनना चाहता था, भारतीय फौज पर हमला करना चाहता था। 3 साल हमारे सेवा भारती के हॉस्टल में रहने के बाद वो खड़ा होकर के कहता है मैं इंडियन फोर्स के अंदर, सेना के अंदर जाना चाहता हूं, सैनिक बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो? इसलिए बनना चाहता हूं कि सैनिक बन करके मैं भारत माता की सेवा करूंगा। कितना बदलाव आ गया। और क्यों सेना में अंदर आना चाहते हो? मैं इसलिए सेना में आना चाहता हूं कि वास्तव में मेरे पिताजी
उनकी मृत्यु का कारण भारतीय सेना नहीं थी। मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण वो आतंकवादी है, वो विचारधारा है जिन्होंने हमारे गांव में आकर के भारत के बारे में गलत बातें हमारे सामने रखी, भड़काया हमें हिंदुस्तान के बारे में। इस हॉस्टल के अंदर रहते रहते मुझे ये समझ में आ गया है पूरा हिंदुस्तान एक है, हम एक ही समाज के लोग रहने वाले। मेरे साथ में अलग मजहब होने के बाद भी किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया है, और इसलिए माँ भारती की यदि रक्षा करना है, मैं सेना में शामिल हो जाऊंगा, और सेना में शामिल होकर के उन आतंकवादियों को जब मारूंगा तब मैं मानूंगा कि मैंने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों उदाहरण आज भारतवर्ष के अंदर देखने को मिलेंगे हमको। और इसलिए स्वर्गीय अजीत कुमार जी की स्मृति में आज हम सब लोग यहाँ हैं, तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि निश्चित रूप से यही होगी कि जो बातें शास्त्र के अंदर कही गई हैं वो हम सबके आचरण के अंदर आ जाए। ठीक है, कुछ लोग कश्मीर में काम करेंगे, कुछ लोग अरुणाचल में जाकर के काम करेंगे, कुछ लोगों को शायद मेघालय के अंदर जाना पड़ सकता है, कुछ लोगों को गांव के अंदर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन सोचने वाला विषय यह है कि जाने वाले लोग दूरस्थ इलाके के अंदर जरूर जाएंगे और काम करेंगे, लेकिन हम लोग जो शहर के अंदर रहते हैं, हम लोग जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, हम लोग जो सक्षम माने जाते हैं, ऐसे हम लोग भी हमारे अड़ोस पड़ोस में, नेबरहुड में कहीं न कहीं ऐसे यदि कोई गरीब, निर्बल, दुर्बल ऐसा कोई समाज रहता है, बच्चे रहते हैं, माता बहनें रहते हैं, उनके जीवन के शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और रोजगार, ऐसे सब बातों की चिंता में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, ऐसा यदि हम सब लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं और योजना बना करके शीघ्रता से यदि इस काम के अंदर लग जाते हैं, तो ऐसा कोई समाज हमारे शहर के अंदर, शहर की बात कर रहा हूँ, शहर के अंदर ऐसा कोई समाज नहीं रहेगा जो भारत के खिलाफ किसी दिन जाकर के खड़ा हो जाए। वो भारत का रहेगा, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रहेगा, और जो हम स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, हम जो भारत माता को परम वैभव के ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, तो संपूर्ण समाज मिल करके और माँ भारती को उस सर्वोच्च सिंहासन के ऊपर ले जाने में हम सफल रहेंगे, सक्षम रहेंगे, ऐसा संकल्प हम सब लोग यदि लेते हैं। इतना कहते हुए मैं अपना कथन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।